Hello, hi, most welcome in Stanford everyone. Today we are going to know how and what are we going to do in our monthly test or exam. So in today's this lesson or this video, I'm going to share the question I'm going to share questions or things for writing test, speaking test, listening test and reading test, that what are you going to do for these 4 tests and what are you going to submit as your assignment. What are you going to submit? Okay, so this lesson is very important to watch. Please watch it till end. Next thing, today we are not going to do any question of the day or recap, because today we are going to do revision of whole lesson from lesson number 47 sound of th or ts sound to lesson number 69 talking about present. So today we are going to do revision actually, but in this video I'm going to tell you about assignment, reading test, listening test, speaking test and writing test, because you are going to send all these things by today. After sending these all things today, you are going to appear in the exam tomorrow. If you send these things today, then you'll appear in the exam tomorrow in this monthly exam. So let's recap. On Zoom or in offline class, today we will do recap or revision of lesson number 47 to lesson number 69, and tomorrow is our exam, or you can say monthly test. So dear students, before we start recap or revision of today's in today's lesson or in today's class, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको एक सवाल का जवाब देना है. वाई टेस्ट्स और एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट? टेस्ट्स या एग्जाम्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? वाई टेस्ट्स एंड एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट? In my opinion, tests and exams are very important for your facilitator or teacher to track your improvement, to track your area of improvement, to track your weakness or strength, to track that where you need to work on. This is the importance for your teacher or facilitator. So what is the importance of exam and test in your life? Please share it. Please share. This is very important. Now let's have a look on. And tests help us. Tests helps us to find out that which type of certificate you are going to get. सी फॉर बेंचमार्क पे, जो सी फॉर कॉमन रिसर्च के थ्रू जो आपका सर्टिफिकेशन होता है, वो सर्टिफिकेशन आपका होता है किस तरीके से? एक बेंचमार्क को फॉलो करते हुए एक टेस्ट होता है. तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और असाइनमेंट के टोटल मार्क्स का जो एवरेज होता है वो होना चाहिए टोटल मिला के. अगर 90% से एबव आप स्कोर करते हो तो आपको गोल्डन सर्टिफिकेट मिलता है. अगर 60 to 90% के बीच में मिलता है तो आपको सिल्वर सर्टिफिकेट दिया जाता है. एंड अगर आप 60% से कम स्कोर करते हो तो आपको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट दिया जाएगा. तो ये कैसे फाइंड आउट होगा? जाहिर सी बात है, एक तो डेली आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा रहा है. आप कितने रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, कितने पार्टिसिपेटिव हो, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आप जो को टॉपिक जो पढ़ाए जा रहे हैं. बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हाँ सो उठ के आ गए और कुछ देखा नहीं, बस जूम पे आ गए, बहुत हो गया. सो फाइन, आपके लिए हो सकता है बहुत होगा, बट एज पर द सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया यू आर नॉट अप टू द मार्क. आप चीज़ें सही से नहीं कर रहे हैं. सो द बेस्ट स्टूडेंट इज दैट वन हु इज़ doing everything as per the schedule. Like अगर आपको कहा गया कि YouTube पे जो लेसन उसको वॉच करना है, आप वॉच कर रहे हो. जो एडिशनल वीडियोस भेजे जा रहे हैं उसको देख रहे हो. फिर Zoom पे आके प्रॉपर पार्टिसिपेशन कर, जैसे कि अभी इंटरमीडिएट लेवल में कुछ बच्चे हैं, अदीबा हैं, नेहा हैं, और भी कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं. आरती भी अच्छा परफॉर्म करती हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, इट्स ओके. आप स्लो धीरे धीरे एक दिन आप उन बच्चों से आगे चले जाओगे जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो आता है, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लेसन वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ ज़िंदगी में. तो उनके लिए है कि अगर आप सच में इतने बिजी हैं, देन वाई डिड यू ज्वाइन द कोर्स? अगर आप कभी भी ज़िंदगी में ऐसा फील करो कि आप बहुत बिजी हो तो आप एक्स्ट्रा कोर्स को कभी ज्वाइन मत करो. ठीक है, आप अगर
प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप क्लास ले सकते हैं तभी आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, वरना लास्ट में आप कहेंगे हाँ ज्वाइन तो किया था, आप ही उन बच्चों में से होंगे जो लास्ट में बोलेंगे हाँ ज्वाइन तो किया पर कुछ सीखा नहीं। पर ये नहीं सोचेंगे कि आप रेगुलर कितने थे, क्या आप रेगुलर थे, क्या पंक्चुअल थे, क्या आपने सारे लेसन्स जिस तरीके से आपको ग्रुप में सेंड किया गया आपने सारे लेसन्स को वॉच किया। ये चीज़ आप नहीं सोचोगे उस समय, बस सीधा जज कर दोगे, क्लास को जज कर दोगे स्टैनफोर्ड इसको कि हाँ हमने नहीं सीखा। अब कोई मैजिक तो होगा नहीं, क्लास का मतलब ये थोड़ी नहीं कि कोई मैजिक होगा, आपको बताया जाएगा कि हाँ ऐसे करना है। आई एम ए फैसिलिटेटर या फिर टीचर कह सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, पर प्रैक्टिस करना, पढ़ना ये आपका काम है। अगर मैं आपको आधे घंटे पढ़ाता हूँ तो आपको घर पे क्लास के अलावा आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 1:3 का रेशियो होता है मिनिमम, लेकिन मैं तो 1:2 कह रहा हूँ कि अगर YouTube वीडियो आप देखते हो, Zoom पे आते हो, इसके अलावा आपको कम से कम आधा से 1 घंटा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप सच में इंग्लिश स्पीकिंग के फील्ड में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक सही जगह पहुंचना चाहते हो, टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो और एक मतलब फैंटास्टिक इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखना चाहते हो, तो नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, नो इश्यू। आप में से कितने लोग जो हैं जो आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं? आप में से कितने लोग हो जो नोट यूट्यूब वीडियो देखते समय नोट्स क्रिएट करते हो, कुछ लिखते हो? नोट बनाने का मतलब वही नहीं कि सब कुछ डिटेल में लिखना, बिल्कुल नहीं। नोट्स का मतलब है कि आप यूट्यूब जो आपको लेसन सेंड किए जाते हैं उसको देखते समय आप कुछ नोट करो इन रफ। उसके बाद जो भी आपने नोट किया है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मिलाकर आईने के सामने खड़े होकर बोलो। कितने बार आपने किया? क्या आप रोज़ करते हो ऐसा? अगर आप एक दिन भी स्किप करते हो, एक दिन भी ऐसा नहीं करते हो, एक दिन भी प्रैक्टिस मिस करते हो, इसका मतलब है आपने जितना कुछ सीखा होता है उसको 1 हफ्ता पीछे धकेल देते हो, सीधा 1 हफ्ता पीछे आप धक्का मारते हो। अगर आप एक दिन ज़ूम पर नहीं आते हो, इट्स मीन आप खुद को 2 दिन पीछे धक्का दे देते हो, पुश कर देते हो जहाँ भी आप खड़े हो। सपोज दैट आपने 80% सीख लिया, 90% सीख लिया है, और सपोज दैट आप 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए, आपने 1 हफ्ते प्रैक्टिस नहीं करी, आपने 1 हफ्ते यूट्यूब की वीडियो जो भेजी जाती है वो नहीं देखा, इट्स मीन आपने खुद को 10% बैक कर दिया, अपनी लर्निंग्स को 10% घटा लेते हो अगर आप 1 हफ्ता गायब होते हो तो। और कुछ बच्चे तो काफ़ी लंबा गायब होते हैं। सो लैंग्वेज जो है प्रॉपर बेसिकली प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस किस चीज़ पे होगा? जो आपको चीज़ें दी जाती, टॉपिक्स और सिलेबस जो बुक्स हैं वो एवं ही नहीं है, वो 20 ईयर्स के रिसर्च का नतीजा है। US कैलिफोर्निया जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, उन्होंने सर्वे किया है स्टूडेंट्स पे, रेगुलरली हर 3 साल पे सर्वे करते हैं और कोर्स को अप टू डेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो कुछ अगर बनाया है, कुछ दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए दिया है, आपकी बेहतरी के लिए दिया है कि आप एक बेटर इंसान बन सको। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, कंप्यूटर स्किल, कीबोर्डिंग स्किल, उसके बाद आपकी डिजिटल स्किल, आपकी मीन्स और भी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव कर सके और आप प्रोफेशनली एक बेहतर इंसान बन सको। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ टाइम टू शेयर द क्वेश्चन, नाउ टाइम टू शेयर अबाउट द थिंग्स विच यू नीड टू परफॉर्म और यू नीड टू सबमिट बिफोर टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट, सो एंड ड्यूरिंग टेस्ट, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, ड्यूरिंग टेस्ट। सो आपको आज एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आपको एक क्या करना है, कुछ चीज़ें सेंड करनी है और कुछ चीज़ें कल परफॉर्म होगी ऑन जूम। तो कैसे, कौन सा टेस्ट होने वाला है, चलिए नज़र डालते हैं। सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं राइटिंग टेस्ट। तो राइटिंग टेस्ट के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन है। क्या है ये? आपको राइटिंग टेस्ट आपको भेजना है कम से कम 3 पेज में, आपको लिखना है और ये एक PDF में बना के सेंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लर्न इन लास्ट 24 डेज? लास्ट 24 डेज में आपने क्या क्या सीखा है? प्लीज़ एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। कम से कम 2 से 2.5 पेज में आपको एक्सप्लेन करना है, 2 to 2.5, 2 से 2.5 पेज में आपको कम से कम एक्सप्लेन करना है। 3 पेजेस मान लो, 3 पेजेस में आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या सीखा इन लास्ट 24 डेज।
हमने 24 लेसन्स किए हैं, कई सारे टॉपिक्स किए हैं, नॉवल रीडिंग कराई, कीबोर्डिंग किया, बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ देखे हैं, सॉन्ग्स गाए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें की। तो आपने पर्सनली क्या सीखा इन लास्ट 24 डेज, प्लीज़ शेयर। नेक्स्ट, हाउ स्टैनफोर्ड क्लास इज़ हेल्पिंग यू टू सक्सेस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको कैसे कामयाबी की तरफ स्टैनफोर्ड क्लास ले जा रही है, कैसे कामयाब बना रही है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में स्टैनफोर्ड क्लास। प्लीज़ इसको भी डिस्क्राइब करें, कम से कम आधे पन्ने में तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम टोटल 3 पेज कम से कम होना चाहिए, कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम 3 पेजेस में होना चाहिए दोनों क्वेश्चन, कम से कम 3 पेजेस में, 3 से हाफ पेज ज़्यादा हो जाए दैट्स बेटर। अगला, ये तो हो गई राइटिंग टेस्ट। रीडिंग टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, एक वीडियो बनाना है 3 मिनट्स का, और उसमें शेयर करनी है अपने स्टोरी ऑफ योर नॉवेल। जो भी स्टोरी बुक नॉवेल आप पढ़ रहे हो, उस स्टोरी बुक या फिर नॉवेल जो भी आप पढ़े हो अभी तक, जितना पढ़े हो उसको समराइज़ करना है और उस पर 3 मिनट्स बोलना है, 3 मिनट बोलना है। हम लोग ने अभी तक कई सैटरडेज़ को बोला है, प्रेजेंटेशन दी है, कई बार बच्चों ने तो बहुत बोला है, तो 3 मिनट तो हम लोग समराइज़ कर ही सकते हैं कम से कम। तो कम से कम 3 मिनट्स का वीडियो शूट करना है और उसमें आपको बताना है अपने नॉवेल के बारे में, और स्टार्ट करना है हेलो एवरीवन और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये नहीं करना, सीधा करना है हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इजाज़ अहमद, आई एम रीडिंग दिस नॉवेल एंड इट इज़ रिटन बाय, लेखक का नाम, एंड टिल नाउ और टिल टुडे आई हैव रीड, क्या रीड किया है वो बताना है, समराइज़ करना है, एक समरी बतानी है, ठीक है। तो ये 3 मिनट्स का होगा, ये आपका रीडिंग टेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग टेस्ट पे, तो ये होगा जूम पे लाइव। जब कल आप लोग लाइव आएंगे जूम पे, तो या फिर ऑफलाइन क्लास में हो तो ऑफलाइन क्लास में जब आप लोग लाइव आएंगे तब आप लोग क्या करेंगे, ऑन जूम लाइव आप लोग लाइव क्या करने वाले हो, 1 क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा हर एक लेसन से। लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट यही हो जाएगा, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो ये आपका लिसनिंग टेस्ट हो जाएगा, आपने सही सुन के सही जवाब दे दिया, दैट इज़ योर स्पीकिंग टेस्ट। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट आपका ऑन जूम होगा, तो अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन्स तो कम से कम पूछूंगा, पर अगर टाइम रहा तो हो सकता है मैं 20 क्वेश्चंस भी पूछूं। तो आपसे हर लेसन से एक क्वेश्चन किया जाएगा, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच लेसन विल बी आस्क्ड। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आना। मैंने प्लेलिस्ट अगर भेज दिया है तो ठीक, नहीं भेजा है तो आप अपने इस लेसन का, इस अभी तक के 24 लेसन का जो प्लेलिस्ट है वो मुझसे मांग लो, मैं शेयर कर दूंगा, और हो सके तो एक बार गो थ्रू कर लो। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं हर लेसन के 1 आध पेज के, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आपके लिए रिवीजन करना आसान होगा, क्योंकि जो हम लोग सीखते हैं उसका एक ट्रैक होना चाहिए, उसकी रिवीजन होनी चाहिए और उसका एक टेस्ट होना ही चाहिए। तो हर लेसन से आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा और हर क्वेश्चन के कुछ मार्क्स होंगे, ऐसा ही नहीं होगा। अगला हम लोग कीबोर्डिंग टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपको कीबोर्डिंग सिखा रहा हूँ इन बिटवीन कई बार। तो आपको क्या करना है, स्टैनफोर्ड www.stanford.in, नीचे भी देखो www.stanford.in चल रहा होगा। इस वेबसाइट पे जाना है, बुक एंड रिसोर्स वाले सेक्शन में जाना आप, वहाँ पे कीबोर्डिंग और टाइपिंग के नाम से एक ब्लू कलर का लिंक दिखाई दे रहा होगा, लिंक पे क्लिक करना, एक वेबसाइट खुल जाएगी। मुश्किल से 1 मिनट का टाइपिंग है, तो आप लोग बराए मेहरबानी, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने लैपटॉप या सिस्टम पे बैठ के टाइपिंग करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और टेस्ट को ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि ये आपका टेस्ट है, अपना टेस्ट है, अपनी इम्प्रूवमेंट है। आपको भी समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो आफ्टर अटेंडिंग दिस 24 डेज। इस जो अभी हम लोगों ने ये वाला जो सेक्शन ख़त्म कर रहे हैं 24 दिन का, इसमें हम कहाँ पे खड़े हो रहे हैं आज की डेट में। तो ये कीबोर्डिंग टेस्ट भी आपका होना है। अगला है असाइनमेंट। आज ये असाइनमेंट आपको सेंड करना है। आपको क्या सेंड करना है, एक असाइनमेंट सेंड करना है, एक ये चीज़, दूसरी वीडियो आज सेंड कर देनी है आपको, और तीसरा ये राइटिंग का PDF। तो 3 चीज़ आपको आज सेंड करना है। पहला क्या सेंड करना है, असाइनमेंट, दूसरा वीडियो रीडिंग वाला, नॉवेल वाला, तीसरा ये जो 2 क्वेश्चन है इसके आंसर करके आज सेंड कर देने हैं जूम पे रिकैप और रिवीजन क्लास से पहले, ठीक है। उसके बाद ये छठा जो है हमारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है, कुछ नहीं है इसमें, आपको बेसिकली कुछ नहीं करना। अगर आपने हर रोज़ 1-2 पेजेस लिखे हैं, अगर 2 पेजेस भी लिखे हैं, मैं देखता हूँ कुछ आरती हैं, दिब्बा हैं, अधिवा हैं और
नेहा वगैरह कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली मुझे नोट्स भेजते रहते हैं, सेंड करते थे। उनका कोई भी नोट्स 2 पेज से कम का नहीं होता है, मिनिमम 2 पेज का तो होता ही होता है। इट शोज़ देयर मीन्स कितने पंक्चुअल हैं। और आरती गुप्ता का तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी होता है। दैट्स रियली फैंटास्टिक आरती। तो आपको अपने नोट्स भेजने हैं। नोट्स की क्राइटेरिया ये है कि अगर आप गोल्डन सर्टिफिकेट अर्न करना चाहते हो, अगर आप गोल्डन ग्रुप में जाना चाहते हो, तो कम से कम आपके 50 पेजेस होने चाहिए। जो असाइनमेंट आएगा कम से कम 50 पेजों का होना चाहिए। और अगर आपने डेली एक आध पन्ने लिखे हैं तो ये 50 पेजेस आपके पास होंगे। बस उसको फोटो क्लिक करना है, एक PDF में बनाना है और सेंड कर देना है। ठीक है, सेंड योर डेली नोट्स इन 1 PDF, और एक ही PDF में भेजना है। तो एक PDF हो जाएगा असाइनमेंट का, जिसको नोट्स कह लो, वो वाला हो जाएगा एक PDF। दूसरा PDF होगा राइटिंग वाला। ठीक है, और तीसरी चीज़ भेजनी है आपको क्या, ये रीडिंग वाला वीडियो पार्ट। बाकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए मैं आपको क्वेश्चंस करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करूँगा ऑन जूम लाइव। और कल का जो आपका एग्ज़ाम वाला जो जूम क्लास होगा वो लाइव जो भी होगा वो रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्डिंग होगी। जो बच्चे भी एब्सेंट होंगे वो बड़े ही आसानी से ब्रॉन्ज वाले लेवल में चले जाएंगे। उनको फिर कभी मुझे लगता नहीं कि अगर क्लास एब्सेंट करने के बाद वो आगे कभी ब्रॉन्ज से सिल्वर या गोल्डन में जा पाएंगे। सो प्लीज़ डोंट बी एब्सेंट एट एनी कॉस्ट, बी प्रेजेंट, बी पंक्चुअल एंड अटेम्प्ट योर टेस्ट। एन्जॉय द टेस्ट। टेस्ट को एंजॉय करना चाहिए and rock the test and show that yes, you are a real learner and you want to learn English speaking and personality development at a fantastic level, because English speaking बोले तो Stanford बोले तो English speaking। so मेरे साथ बोलिए, I can speak in English, I will speak in English। तो इसी का 2 मिनट आगे देखिए क्या क्या